بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مر کے بھی تجھے چاہا کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یادوں کی دہلیز پہ آیا آدھا سورج آدھا سایہ، مرنے کے بعد بھی اپنے محبوب کو بھول نہ سکی اور اس سے آدھی ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ پورے 3 سال بعد وہ کمل کو دیکھنے والا تھا۔ اس عرصے میں کمل نے اپنی کوئی تصویر بھی تو نہیں بھیجی تھی، حالانکہ اس نے کئی بار لکھا تھا کہ اپنی تصویر بھیج دے، مگر اس بات کو وہ ہمیشہ ہی ٹال جاتی تھی۔ جہاز رکا، سیڑھی لگی اور مسافر ایک ایک کر کے نیچے اترنے لگے۔ لاؤنج میں ملنے جلنے والوں کا شور تھا، مگر اس کی نظریں بےتابی سے جس چہرے کی تلاش میں تھی وہ اس بھیڑ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے آخری خط کے آخری الفاظ سے یاد آنے لگے تھے، تم ایئرپورٹ پر مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ جانتا تھا کہ جو وہ کہہ دیتی ہے اسے ہر حال میں پورا کرتی ہے۔ اس نے جانے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پابندی سے خط لکھا کرے گا، اور پورے 3 سال اس نے اس وعدے کو نبھایا تھا۔ اس کا خط پہنچنے میں کبھی ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایئرپورٹ سے نکل کر ٹیکسی لی اور اسے ناظم آباد میں واقع اس بلڈنگ کا پتہ بتایا جس کے ایک فلیٹ میں کمل رہتی تھی۔ اسے اس گھر کے علاوہ جانا بھی کہاں تھا، کمل ہی تو تھی اس کی ساری خوشیوں کا محور۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ اسی ہی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ لاہور سے نوکری کی تلاش میں تقریباً 5 برس پہلے کراچی آیا تھا، جبکہ کمل کا تعلق اسی شہر سے تھا۔ وہ ایک آفس میں سیکرٹری کی جاب کرتی تھی اور وہ وہاں نوکری کے لیے انٹرویو دینے گیا تھا۔ اسے وہاں نوکری تو نہ مل سکی، مگر کمل جیسی دوست ضرور مل گئی۔ ان دنوں وہ کرنگی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ رہتا تھا۔ سارا دن وہ نوکری تلاش کرتا اور شام کو جب کمل سے ملتا تو مایوس ہو کر بکھر جاتا۔ اسے لگتا تھا اس کی ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی اور وہ نوکری حاصل کرنے میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مگر یہ کمل ہی تھی جس کی باتیں مایوسی کے اندھیروں میں سورج کی کرن کا کام دیتی تھی۔ وہ اپنی پیار بھری باتوں سے اس کے دل میں امید کی نئی شمع روشن کر دیا کرتی تھی۔ صاحب، آپ کو لینے ایئرپورٹ پر کوئی نہیں آیا؟ ٹیکسی ڈرائیور نے سوال پوچھ کر اس کے خیالات کو منتشر کر دیا۔ نہیں، وہ گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کا لہجہ کمل کی محبت سے لبریز تھا۔ اچھا ہی ہوا تھا وہ ایئرپورٹ پر اس سے نہیں ملی تھی، ورنہ 3 سالوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر شدت جذبات سے وہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھتا۔ اس نے خود ہی خود مسکراتے ہوئے سوچا اور پھر سے اپنے خیالوں میں ڈوبتا گیا۔ پتہ نہیں کتنی منتیں مرادیں مانی تھی اس نے یاور کے لیے، کتنی دعائیں کی تھی اس کی نوکری کے لیے، اور بالآخر اس کی دعائیں اس دن پوری ہوئی جب خاور کو ملازمت مل گئی۔ بڑی اچھی نوکری تھی، بڑی اچھی تنخواہ تھی، مگر مسئلہ صرف ایک ہی تھا کہ اس سے 3 سال کی ٹریننگ پر فوراً ہی انگلینڈ جانا تھا۔ دفتر والے خود ہی اس کے سارے کاغذات وغیرہ تیار کرنے پر راضی تھے۔ نوکری اچھی صحیح، تنخواہ بہت زیادہ صحیح، مگر وہ 3 سال کمل کے بغیر کیسے رہ سکتا تھا؟ یہ تو بڑی کڑی شرط تھی، مگر کمل ہی آڑے آئی تھی۔ وہ تو وہاں انکار کرنے چلا تھا، مگر کمل نے اسے سمجھایا تھا اس ٹریننگ کے بعد تو دونوں کو اکٹھا ہی رہنا تھا۔ 3 سال تو پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں، خود اس کے لیے بھی یاور کو دیکھے بغیر اتنا عرصہ گزارنا آسان نہ تھا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر اور آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ اسے سمجھاتی رہی، اور پھر اپنی جان کی قسم دے کر اس نے اسے انگلینڈ جانے پر راضی کر ہی لیا۔ اس کی ساری پیکنگ اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ جیسے جیسے اس سے دور جانے کے دن آ رہے تھے، یاور کو احساس ہو رہا تھا کہ لمبے بالوں اور خوبصورت نقوش والی کمل چھپکے چھپکے اس کی زندگی بن چکی ہے۔ اگر اس کی جاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کب کا اس سے شادی کر چکا ہوتا، مگر اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ شادی کے بعد وہ اسی کے گھر میں رہنا اور اپنی تنخواہ پر اسے پالتی۔ اسی لیے کمل کی خاطر ہی وہ اس سے دور ہوا تھا۔ کتنا مشکل وقت تھا، اگر کمل کے خطوں کا سہارا نہ ہوتا تو وہ تو کب کا بھاگ کر واپس کراچی آ جاتا، مگر اب تو وہ مشکل وقت گزر چکا تھا۔ چند منٹ، بس چند منٹ باقی تھے، پھر کمل اس کے روبرو ہوتی۔ ٹریفک کے ہجوم میں راستہ بناتی ٹیکسی اب رضیہ اسکول کے سامنے آ رہی تھی۔ اسی کے فلیٹ نمبر 4 میں اسے جانا تھا۔ اس نے بغیر دیکھے بہت سے نوٹ ٹیکسی والے کو تھما دیے۔ ڈرائیور نے ڈکی سے اس کے دونوں سوٹ کیس نکال کر اسے دیے اور خود سلام کر کے چلا گیا۔ ان میں کالے والے بڑے سوٹ کیس میں وہ چیزیں تھیں جو وہ کمل کے لیے لایا تھا، اور چھوٹے بیگ میں خود اس کا سامان تھا۔
बिल्डिंग के गेट पर खैरू पापा की बजाय कोई और चौकीदार बैठा था। इर्द गिर्द की दुकानें आबाद थी, लोग गेट से अंदर आ जा रहे थे। वो दोनों बैग संभाले फ्लैट नंबर 4 के आगे आकर रुक गया। इस 3 मंजिला बिल्डिंग के हर फ्लोर पर 4-4 फ्लैट थे। कमल के फ्लैट का नंबर 4 था, जहां वो अपने वालिदैन की वफात के बाद तनहा ही रहती थी। फ्लैट के पुराने सफ़ेद दरवाजे से वो अच्छी तरह मनूस था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो बड़े जोश से आगे बढ़ा, मगर फिर इसके कदम रुक गए। फ्लैट के दरवाजे पर ताला पड़ा था। वो इस ताले को भी पहचानता था। कमल जब ऑफिस जाती थी तो यही छोटा सा ताला कुंडी में डाल जाती थी, मगर वो आज भी ऑफिस गई होगी। यावर को ये उम्मीद नहीं थी। अगर वो इसे लेने एयरपोर्ट नहीं आ सकी थी तो कम से कम घर पर तो इसका इंतजार करती। इसने नाराज होकर सोचा, वैसे ये भी हो सकता था कि वो करीब मार्केट से कुछ खरीदने गई हो और अभी आ जाए। इसे अचानक ही ख्याल आया कि वो अपनी सारी खरीदारी वहीं से तो करती थी। अगर ऐसी बात थी तो खाला नसरीन को जरूर पता होगा, जो कमल की बड़ी पुरानी पड़ोसन थी। इसने फ्लैट नंबर 3 के रंग उड़े दरवाजे की घंटी बजाई और खाला नसरीन का इंतजार करने लगा, जिन्हें वो अच्छी तरह जानता था। वो भी इसे खूब पहचानती थी और अक्सर नसीहत किया करती थी कि इसे जल्द से जल्द कमल से शादी कर लेनी चाहिए। दरवाजा खुला तो नसरीन खाला की बजाय एक और दुबली पतली औरत सामने खड़ी थी। नसरीन खाला को बुला दीजिए, इसने तमीज से कहा। वो तो पिछले साल ये फ्लैट हमको बेचकर अपने बेटे के पास सोतिया चली गई। औरत ने उखड़े से लहजे में बताया। ओहो, अच्छा, आप बता सकती हैं कि ये नंबर 4 वाली मिस कमल कहाँ गई हैं? इसने नरमी से पूछा। हमें क्या पता जनाब, इस घर में तो हम 1 साल से ताला लटका देख रहे हैं, इस औरत ने बेजारी से कहा और दरवाजा बंद कर लिया। किस कदर बदतमीज औरत थी, हर बात का उल्टा जवाब। भला इस फ्लैट में साल भर से ताला कैसे लगा हो सकता था? इससे गुस्सा आने लगा, मगर अब वो मजीद इस औरत से कोई बात करने को तैयार नहीं था। फ्लैट नंबर 1 पर किराए के लिए खाली है का बोर्ड लगा हुआ था। नंबर 2 वाले ख्वाजा नसीम को वो अच्छी तरह जानता था। अधेड़ उम्र ख्वाजा नसीम कमल का बड़ा ख्याल रखते थे। इनकी बीवी इसे बेटी की तरह समझती थी और वो इन्हें अंकल ख्वाजा कहती थी। मगर मुसीबत ये थी कि फिलहाल इनके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था। पता नहीं वो लोग किधर गए थे। इसने सोचा कि अब इसे सीधा कमल के ऑफिस जाना चाहिए, वो जरूर वहीं होगी। क्या था जो आज वो छुट्टी कर लेती। ये सोचता हुआ वो कोफत के आलम में नीचे आया और दोनों सूटकेस संभाले टैक्सी रोकने लगा। जी, इस जॉब पर तो पिछले 6 माह से मैं हूँ और मुझसे पहले मिस खान काम करती थी। जिस कुर्सी पर इसने कमल को बैठे देखा था, आज इस पर गहरी रंगत और मोटे नकूश वाली एक मॉडर्न सी लड़की बैठी बड़ी अजीब लग रही थी और बहुत अजीब बात कह रही थी। मिस खान नहीं, मिस कमल। इसने इसकी बात की तस्दीक की। जी नहीं मिस खान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इन्हें, वो मेरे पड़ोस में ही रहती हैं। लड़की ने बरमान इस सूंड मूड लड़की ने हैरत से इस नौजवान को देखा था। इत्तेफाक ये था कि वो जिस वक्त कमल के ऑफिस पहुंचा वहाँ लंच टाइम था। बहुत कम लोग मौजूद थे और वो भी लंच के लिए उठ ही रहे थे और वो सब इसके लिए अजनबी ही थे। इससे तो यूं लग रहा था जैसे 3 साल में पूरा कराची ही बदल गया हो। कोई इसकी बात समझने को तैयार नहीं था। देखिए, आप गलत कह रही हैं, इसने गुस्से से कहा। मिस्टर, आप कौन हैं? लड़की को भी गुस्सा आ गया था और वो उठकर खड़ी हो गई थी। ऑफिस के 2-1 लोग जो वहाँ मौजूद थे इनके गिर्द जमा हो गए। लड़की ने शिकायती लहजे में इन्हें सारी बात बताई और घसीली निगाहों से यावर को घूरने लगी। मिस, सच कह रही हैं मिस्टर, बेहतर यही है कि अब आप यहाँ से चलते फिरते नजर आइए। एक लंबे चौड़े तंदुरुस्त नौजवान ने खूनख्वार नजरों से इसे देखते हुए कहा तो वो जलकर वहाँ से उठ गया। सारी दुनिया पागल हो चुकी थी और इसे भी पागल करने पर तुली हुई थी और वो पागल बना 2 सूटकेस उठाए टैक्सी में सारे शहर के चक्कर लगाता फिर रहा था। इसे अच्छी तरह मालूम था कि कमल की ना कोई दोस्त थी और ना ही कोई रिश्तेदार। अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बारे में कहाँ से मालूम करे। वैसे इसे कमल की वो पड़ोसन झूठी ही लगी थी। असल बात तो ख्वाजा अंकल ही बता सकते थे। इसने टैक्सी वाले को, जो नीचे सामान समेत इसका वेट कर रहा था, कमल के फ्लैट का पता बताया और खुद कुछ सोचने लगा। हो सकता है कि कमल कुछ दिनों के लिए अपने फ्लैट की बजाय कहीं और रह रही हो, मगर कहाँ? इस सवाल के आगे एक सवालिया निशान था और इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। टैक्सी वाले ने शॉर्टकट लिया था। वो नाज़माबाद के इलाके में दाखिल होकर इलाके के पोस्ट ऑफिस के सामने से गुजरे और अचानक इसके दिमाग में बिजली सी चमकी। पोस्ट ऑफिस कमल यहीं से खत पोस्ट करती थी और इसके खत यहीं से इस तक पहुंचा करते थे। ड्राइवर, गाड़ी रोक दो, इसने तेजी से कहा और ड्राइवर
यावर ने पूरे ब्रेक लगाए। टैक्सी रुक गई। दिन के 2 बज रहे थे। तवील सफर की थकन और कराची पहुंचने के बाद बेवजह भागदौड़ ने इसका जोड़ हिला दिया था, मगर इसका दिमाग सोच सोच कर शल हो रहा था। क्या अजीब बात थी, मगर अब शायद इसकी सारी मुश्किल हल हो जाती। कुछ देर बाद वो डाक खाने के काउंटर पर खड़ा इसके पीछे मौजूद दोनों क्लर्कों से बात कर रहा था। जी हाँ, इस पते की डाक यहीं से पोस्ट की जाती है। इनमें से एक क्लर्क ने इसको बताया। कौन पोस्ट करने आता है? इसने जल्दी से पूछा। जी वो एक लड़की है, बड़ी खूबसूरत सी। दूसरे ने मुतासर कुन लहजे में कहा। इसका हुलिया कैसा है? पता नहीं क्यों इसने पूछा था। लंबा कद, सीधे खुले हुए लंबे बाल, गोरी रंगत और खूबसूरत नक्श। इसके बाएं गाल पर एक तिल भी है। वो सफेद कपड़े पहनती है। दूसरे ने तफसील से हुलिया बताया था और बिलाशुबा वो कमल ही का हुलिया था। और मेरे यहाँ भेजे हुए खत, मैं इस डाकिये से मिलना चाहता हूँ जो कमल के खत उसको पहुँचाता है। आप यावर साहब हैं जी, जिनको मिस कमल खत भेजती है? पहले ने दिलचस्पी से पूछा। यूं तो डाक खाने में आने जाने वालों की कमी नहीं थी, मगर वो लड़की मुतवातर 3 सालों से पाबंदी से यहाँ आती थी और फिर इसका हुस्न भी याद रखने की चीज थी। आखिरी खत इसने यहीं से सिर्फ 15 दिन पहले इंग्लैंड भेजा था। हाँ मैं यावर हूँ, मगर वो डाकिया, इसने बेसब्री से कहा। इससे डर था कि जवाब में ये सुनने को ना मिले कि वो इस वक्त मौजूद नहीं है। जी डाकिये की तो जरूरत ही नहीं है, मिस कमल तो खुद ही अपनी डाक यहाँ से लेकर जाती हैं। दूसरे क्लर्क ने बताया। जब भी आपका खत आता है वो इसी वक्त खत लेने पहुँच जाती है। आखिरी बार वो 15 रोज पहले यहाँ आई थी, जब आपके लिए उन्होंने आखिरी खत पोस्ट किया था। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। वो इनका शुक्रिया अदा करके बाहर निकल आया। जो डर इसके दिल में पैदा हुआ था कि कहीं वो बीमार वगैरह होकर हॉस्पिटल में तो नहीं पड़ी है, अब जरा कम हो गया था। वो अपने मामूल पर कार बंद थी। टैक्सी का दरवाजा बंद करते हुए इसने पूरे इत्मीनान लहजे में कहा। इससे उम्मीद थी कि अब तक कमल जहाँ भी गई है वहाँ से लौट आई होगी और अब वो बिल आखिर इससे मिलने में कामयाब हो जाएगा और सामान रखकर सुकून का सांस लेगा। यहाँ इसका वैसे भी कोई दूसरा ठिकाना कब था? इसका वो पुराना दोस्त जिसके पास वो बरसों पहले रहता था, कब का नौकरी की तलाश में दुबई जा चुका था और अपने हर खत में कमल ने इसे वादा लिया था कि वो इसके फ्लैट ही में ठहरेगा। वो कमल के मुतालिक ही सोचता हुआ फिर से इसके घर आन पहुंचा था। ड्राइवर को पैसे देकर इसने रुखसत किया और एक बार फिर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गया। गेट पर बैठा चौकीदार इस बार मशकूक निगाहों से इसे देख रहा था। जो सुबह से दूसरी मर्तबा अपना सामान उठाए इधर आया था, वो इस पर ध्यान दिए बगैर अंदर की तरफ लपका, मगर फ्लैट नंबर 4 पर लटका हुआ ताला अब भी इसका मुंह चढ़ा रहा था। आखिर कहाँ चली गई? इसका सारा जोश समंदर के जाग की तरह बैठ गया। इसे जरा भी एहसास नहीं था कि वो इसके लिए कितना परेशान हो रहा होगा। अचानक इसके दिल में नए वहम ने सर उठाया। ऐसा तो नहीं कि एयरपोर्ट जाते हुए इसकी टैक्सी को हादसा पेश आ गया हो। इसे ऐसा लगा जैसे इसकी नजरों के सामने ट्रैफिक से भरी पड़ी सड़क पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई हों। जोरदार धमाका, कई चीखें और लोगों का मिला जुला शोर इसके कानों में क्यामत मचाने लगा था। इसने घबराकर ख्वाजा नसीम का दरवाजा पीट डाला। शुक्र ये था कि इनका दरवाजा लॉक नहीं था, फौरन ही खुल गया था। ख्वाजा साहब इसके सामने खड़े पहचानने वाली नजरों से इसे देख रहे थे। इस अरसे में इनका जिस्म बहुत दुबला हो गया था और सर के सारे बाल चढ़ गए थे, जबकि इसका दुबला पतला जिस्म भर गया था और रंगत निखर आई थी। इसने मूछें भी रख ली थी। शायद ख्वाजा साहब को इसे पहचानने में इसीलिए दिक्कत हुई थी। मैं यावर हूँ ख्वाजा अंकल, इसने जल्दी से कहा। यावर? ख्वाजा साहब का चेहरा उतर गया। जी कमल कहाँ है? इसका फ्लैट बंद क्यों है? इसने बेताबी से पूछा। वो कहाँ गई है? यावर बेटा अंदर आ जाओ। उन्होंने इसकी सारी बातों के जवाब में इतना ही कहा था। कमल कहाँ गई है अंकल? मैंने अपने आने का वक्त, अपनी फ्लैट का नंबर इसे लिख दिया था, फिर भी वो कहाँ चली गई? और इधर इसके ऑफिस में वो अंदर आते हुए तेजी से कह रहा था, मगर अचानक ही बोलते बोलते रुक गया। ख्वाजा साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ कांप रहे थे। खैरियत तो है ना अंकल? कमल ठीक तो है ना? इसका दिल घबराने लगा था। यावर बेटा, ख्वाजा साहब इतना कहकर चुप हो गए। प्लीज अंकल बताइए क्या बात है? इसने परेशानी से इनको झंझोड़ दिया। कमल तो हमको छोड़कर चल दी बेटा। वो अचानक ही रोने लगे। कमल इन्हें बच्चों की तरह अजीज थी। आप क्या कह रहे हैं अंकल? आप पागल हो गए हैं क्या? अभी 10 दिन पहले तो मुझे इसका खत मिला था। वो इनकी बात सुनकर चीख उठा था, मगर इसके हाथ पांव कांपने लगे थे।
10 दिन पहले ख्वाजा साहब ने आंसुओं से तर हैरान आंखों से इसका चेहरा देखा। इसे तो हमसे बिछड़े पूरे 3 साल हो चुके हैं। जिस दिन तुम इंग्लैंड रवाना हुए वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़कर आ रही थी कि इसकी टैक्सी एक ट्रक से टकरा गई। वो शदीद जख्मी हुई, इसे अस्पताल पहुंचाया गया। मुझे और नसरीन आपा को तला मिली तो हम भागे हुए अस्पताल पहुंचे, जहां वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। इसने हमसे वादा लिया कि हम तुम्हें इसके हादसे के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। इसे डर था कि कहीं तुम ये सुनकर अपना काम अधूरा छोड़कर वापस ना आ जाओ। अपने फ्लैट की चाबी इसने मेरे हवाले की थी और मुझसे दरख्वास्त की थी कि जब तुम आओ तो ये चाबी मैं तुम्हें दे दूं और साथ ही इसकी मौत की खबर भी। फिर इसने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया था। मैंने और नसरीन आपा ने ही मिलकर इसके कफन दफन के इंतजाम किए थे। ख्वाजा साहब रोते हुए कह रहे थे। शायद वो मंजर इनकी निगाहों में ताज़ा हो गया था। कमल की जवान मौत, इसका खून में डूबा खूबसूरत चेहरा, इसका जख्मों से चूर जिस्म वो आज तक भुला ही न पाए थे। इसकी वो बड़ी बड़ी आंखें जिसमें यावर की मोहब्बतों के अक्स थे, बेनूर होकर भी अपनी मोहब्बतों की कहानी कह रही थी। आप पागल हो गए हैं अंकल, आप झूठ बोल रहे हो। यावर गुस्से से इतनी जोर से चीखा कि ख्वाजा साहब का फ्लैट ही नहीं पूरा फ्लोवर इसकी आवाज से गूंज उठा था। वो 3 साल से मुझे पाबंदी से खत लिखती है, मेरी बातों का जवाब देती है और आप कहते हैं वो मर गई। पूछिए जरा डाक खाने वालों से जाकर, जहाँ से वो खतूत पोस्ट करने और मेरे खत लेने जाती है। यावर बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? ख्वाजा साहब का चेहरा सफेद पड़ गया और आंखों में दहशत झांकने लगी। मैंने खुद अपने हाथों से इसे कब्र में उतारा था। इसके दफ्तर के साथी वहाँ मौजूद थे, तुम वहाँ जाकर मालूम कर सकते हो। इनका लहजा खौफजदा था। वो मर चुकी है, कमल 3 साल पहले मर चुकी है। तो फिर ये क्या है? इसने तैश में आकर अपना सूटकेस खोला और एक खूबसूरत डब्बे में रखे हुए सारे खतूत निकाल लिए जो इन 3 बरसों में कमल ने अपनी दिलकश तहरीर में इसे लिखे थे। ये देखिए, ये हैं वो सारे खत जो पिछले 3 सालों से वो मुझे लिखती रही है। इसने एक एक करके तय किए हुए सारे कागज खोल डाले और फिर अचानक ही इसके हाथ कांपने लगे। कागज एक एक करके इसके हाथ से फिसलने लगे। वो सादा कागज जिन पर कोई तहरीर नहीं थी, कोई लफ्ज नहीं। 3 साल यही खत इसकी जिंदगी का सहारा बने हुए थे, जो आज सादा कागजों की सूरत इसके सामने जमीन पर बिखरे हुए थे, जिन पर कमल की दिलकश जिंदगी से भरपूर तहरीरों को इसने बार बार पढ़ा था। ख्वाजा साहब अफसोस से इसकी शक्ल देख रहे थे, इसका चेहरा जो खाली था, इसकी आंखें जिनमें ना समझ आने वाली कैफियत थी। ये है इसके फ्लैट की चाबी जो मैं इसकी वसीयत के मुताबिक तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। उन्होंने चाबी इसके हाथ में थमा दी थी और कुछ देर बाद जब कमल के 3 साल से बाद फ्लैट का ताला खोला गया, वहाँ मौजूद हर शय पर मट्टी और गर्द की कई इंच मोटी तह जमी हुई थी। जगह जगह जाले बने हुए थे और हर सिमत वीरानी का एहसास बिखरा हुआ था। यावर की आंखें दीवार पर लगी अपनी तस्वीर पर जम गई, जिसका शीशा इस तरह चमक रहा था जैसे इसे रगड़ रगड़ कर चमकाया गया हो और इसके नीचे मेज पर कुछ कागज ऊपर तले रखे हवा से फड़फड़ा रहे थे। इसने कांपते हुए हाथों से इन्हें उठा लिया। ये इसके वो खत थे जो वो यहाँ कराची कमल को बेचता रहा था। इसने बिस्तर के सरहाने रखी खूबसूरत फ्रेम में जड़ी कमल की तस्वीर उठाई। चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर फूट फूट कर रो दिया। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।